Today's topic, production technology of lilium. Lilium, more typically known as Lilium species, and chromosome number 24 or 36, because there are so many species. Family Liliaceae, origin from Asia. Okay, origin Asia. Importance of lilium: used as a cut flower, beautification, bedding plants. There are two type of species, lilium: Asiatic and Oriental lily. Lilium occupied fourth position in international market. Lilium has excellent veg life, wide range of flower colors and forms, ability to withstand long distance transportation, मीन्स इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना इजी है और जल्दी से खराब नहीं होता, पेरिसेबल नहीं है. नाउ टाइप्स ऑफ lilium. So there are two types of lilium mostly grown in India. First Asiatic type and second Oriental type. Difference between Asiatic and Oriental type. Asiatic derived from hybridization of 20 species of Lilium, Amabilis, Luviferum and Concolor, and Oriental type derived from species Lilium aurantum and Speciosum and Lilium rubellum. Then Asiatic lily have extended range of flowering period, whereas Oriental lily late flowering lilies. Flower colors varies from orange, red, yellow, and Oriental lily are mostly white and pink. यानी कि आपका ओरिएंटल लिली है केवल दो कलर में मिलेगा, या तो व्हाइट मिलेगा या पिंक मिलेगा, बट वाइड रेंज ऑफ कलर्स अवेलेबल इन एशियाटिक लिलीज. फ्लावर्स आर मोस्टली ऑर्डरलेस एंड फ्लावर्स आर मोस्टली फ्रेग्रेंट. ये ध्यान रखेंगे आप. जो लिलियम है, ओरिएंटल लिली है, वो जो है फ्रेग्रेंट है और एशियाटिक लिली ऑर्डरलेस है. Leaves are narrow and upward growing in Asiatic lily, while leaves are broader and almost parallel to ground in Oriental lily. Buds are small in Asiatic lily, that is vary 10 to 16 centimeter, and large in Oriental lily, varies 16 to 22 centimeter. Now next, important varieties of lilies. First, Asiatic lilies. Asiatic Concatenated King, Elite, Pareto, Solomino, Cordelia, Grand Paradise, Novona, Poliana, Yellow Giant, and Vivaldi. Vivaldi also in a rose blackout, and Oriental lily, Stargazer, Narrow Star, Siberia, and Casablanca, Macropolo. These are the some varieties in lilies. There are some photographs of varieties. Asiatic lily, Grand Paradise, ये सब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. ये सब के फोटोग्राफ्स के साथ है. जितना आपको याद रहे उतना दो तीन कम से कम हर टाइप्स की वेराइटी यानी एशियाटिक और ओरिएंटल का आप याद रखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है, ये वेराइटीज हैं सभी. ये ओरिएंटल लिलीज हैं. आपको बताया ओरिएंटल लिलीज में टू कलर्स ही अवेलेबल है, व्हाइट एंड पिंक. देन क्लाइमेट रिक्वायरमेंट ऑफ लिलीज. डे टेम्परेचर 18 to 20 degree centigrade and night temperature 12 to 18 degree centigrade are ideal for lilies cultivation. Relative humidity required 75 to 80% and partial shade 40 to 50%. It is important for lilies cultivation. Partial shade required 40 to 50%, यानी कि हमेशा लिलीज को 40 to 50% शेड की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट, सोइल.
तो ड्रेन्ड स्टाइल मीडियम, आपका मीडिया जो है कोकोपीट, लीफ मोल्ड, रेड सोयल, these are the growing media for lilies. pH should be 5.5 to 6.5. and next, bed compositions: red soil 60%, F5 30% and sand 10%. if you go for cultivation in raised bed, rice husk as per requirement for carbon addition. Propagation: lilium commercially propagated by bulbs. It is propagated through bulbs. A 6-week cold storage period at 2 degree centigrade to 5 degree is needed to break dormancy. यानी कि आप फ्रेश बल्ब जो निकालते हैं वो इसमें यूज नहीं कर सकते. It requires dormancy resting period for breaking dormancy. यानी कि डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए इसको कोल्ड स्टोरेज में 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना कंपलसरी है, तभी आप इसको नेक्स्ट पीरियड में ग्रो कर सकते हैं. अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू ग्रो लीलियम फ्रॉम प्रीवियस क्रॉप. बल्ब्स कैन बी स्टोर्ड माइनस, आपको बेस्ट टेम्परेचर बताया 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको 1 ईयर तक आपको स्टोर करके रख सकते हैं. प्लांटिंग टाइम: अक्टूबर नवंबर बेस्ट टाइम फॉर आवर रीजन. हिली एरियाज फरवरी टू मार्च एंड जुलाई सितंबर. बेंगलोर मार्च अप्रैल एंड अगस्त सितंबर. मींस 2 टाइम्स. इसमें साउथ में हम लीलियम को 2 टाइम में ले सकते हैं. बेंगलोर कंडीशन में 2 टाइम्स में हम कल्टीवेशन कर सकते हैं लीलियम का. देन ट्रीटमेंट ऑफ बल्ब्स: ट्रीटमेंट विद फंजीसाइड्स. अब फंजीसाइड्स में डिफरेंट फंजीसाइड्स हैं, कोई भी फंजीसाइड यूज कर सकते हैं, जैसे थायरम है, कैप्टान है, बाविस्टीन है. 0.2% फॉर 20 मिनट्स आप उसको डिप करके रखेंगे बिफोर प्लांटिंग. बिफोर प्लांटिंग ऐसा नहीं करना है कि तुरंत आपने डिप किया और नेक्स्ट स्टेप पे आप उसको प्लांटिंग कर देंगे. बिफोर 24 आवर्स आप उसको डिप करेंगे और उसको शेड में ड्राई करेंगे, उसके बाद ही उसको प्लांटिंग करना है, नहीं तो रोटिंग होगा. ठीक है. नेक्स्ट है स्पेसिंग. तो मोस्टली प्लांट ग्रोन इन 20 by 15 सेंटीमीटर, 15 by 15 सेंटीमीटर एंड 10 by 15 सेंटीमीटर. डिपेंड्स ऑन स्पीसीज. विच स्पीसीज यू आर ग्रोन इन फील्ड, एशियाटिक और लीलियम. तो जो भी स्पीसीज आप लगाने जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. सोयल स्टेटस ऑफ द कंडीशन, वहां पे जो आपकी किस कंडीशन की सोयल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो ये जो है प्लांट स्पीसीज और उस पर डिपेंड करता है स्पेसिंग. ठीक है. जो आपका प्लांटिंग डेंसिटी हो 30 to 60 प्लांट पर स्क्वायर मीटर. तो डिपेंड्स ऑन लीलियम स्पीसीज एंड वेराइटीज. irrigation: 6 to 8 liter per square meter per day in summer and 5 to 6 liter per square meter per day during winter season. तो ये वाटर रिक्वायरमेंट है फॉर लीलियम कल्टीवेशन. 6 to 8 liters per square meter per day during summer and 5 to 6 liter per square meter per day during winter season. Nutrition: NPK 30 20 20 gram per square meter and for liquid feeding of NPK 10 14 10 and 10 14 NPK. ठीक है. तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे, नीचे वाला जो ज्यादा कुछ नहीं याद रहे तो ये रेशियो आप याद रखेंगे 30 20 20 ग्राम पर स्क्वायर मीटर. ठीक है. और न्यूट्रिशन जो आप वीकली अगर देते हैं तो दोनों के लिए कैल्शियम नाइट्रेट 2.5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर वीक और 19 ऑल NPK 0.5 एंड पोटेशियम नाइट्रेट 2.2 2.3. ऐसे ओरिएंटल को थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर 1.2 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर वीक. तो दिस इज द न्यूट्रिशन मैनेजमेंट फॉर लीलियम कल्टीवेशन. नेक्स्ट, क्रॉप सपोर्ट. ये हर्बिएसियस क्रॉप होती है इसलिए इसको क्रॉप सपोर्ट की जरूरत है. तो क्रॉप सपोर्ट हम नाइलॉन नेट रेडीमेड
नाइलॉन नेट आती है जो आपका कार्नेशन वगैरह में भी यूज करते हैं और इसमें भी यूज कर सकते हैं, तो नाइलॉन नेट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप वायर एंड बाम्बू स्टिक से भी इसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये सपोर्टिंग सिस्टम इसको रिक्वायर्ड हर्बेसियस क्रॉप है, इसलिए लॉजिंग नहीं हो, इसलिए इसको सपोर्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है प्लांट प्रोटेक्शन, तो मेनली जो इंसेक्ट है इसका एफिड, माइट एंड थ्रिप्स, और इसके कंट्रोल में माइट्स और थ्रिप्स के ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले भी डिफरेंट क्रॉप्स में, रोज जरबेरा इनमें बता चुका हूँ, तो ये बार बार रिपीट करने की जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो सेम ही है। आपको इंसेक्ट ध्यान रखना है, इंसेक्ट का कंट्रोल मेजर सेम है सभी क्रॉप्स में। तो थ्रिप्स के लिए एबेमेक्टिन यूज कर सकते हैं। एबेमेक्टिन मैंने आपको पहले भी बोला है, जो एबामाइसिन के नाम से आता है अलग अलग मार्केट में, और माइट्स के लिए भी ये आपका एबामाइसिन के नाम से आता है, और वेटेबल सल्फर भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स हैं। देन डिजीज, ग्रे मोल्ड लगता है इसमें, फूट रोट और रूट रोट लगता है, और इसका बोट्राइटिस, ब्लाइट, ये मेजर इसके डिजीज हैं। ग्रे मोल्ड, फूट रोट एंड रूट रोट और बोट्राइटिस, ब्लाइट। नेक्स्ट बल्ब्स एंड स्केल रोट, ये उसका फोटोग्राफ से कैसे क्या लगता है वो। फिर हार्वेस्टिंग, तो इसको हार्वेस्टिंग हमेशा इसको जो करते हैं जब कलर ब्रेकिंग स्टेज, ब्रश स्टेज जिसको बोलते हैं, ब्रश स्टेज जब होता है उस टाइम इसको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका टर्म यूज करते हैं ब्रश स्टेज, तो उस टाइम में हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कलर ब्रेकिंग जब कलर ब्रेक होता है उस टाइम हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा जब भी हार्वेस्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, हमेशा टच करके नहीं करना और ज्यादा हाइटेड कट नहीं करना है। 10 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से छोड़ के इसको कट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको वो जो सभी क्रॉप्स के लिए तुरंत आप कटिंग करके और टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐड कर सकते रख सकते हैं उसको। तो ये आपका हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग स्टेज आपका लोकल मार्केट के लिए 1 to 2 फ्लोरेट्स ओपन, डिस्टेंट मार्केट में फ्लोरेट्स शो कलर, आपको मैंने बोला ब्रश स्टेज जो है उसमें इसको कटिंग कर सकते हैं। जैसे ये कलर यहाँ से जो पोड होती है उसमें कलर ब्रेक होता है, उसी टाइम उसको हार्वेस्ट करेंगे। और फिर क्रॉप ड्यूरेशन, क्रॉप ड्यूरेशन है वो आपका एशियाटिक हाइब्रिड्स के लिए 8 to 10 वीक्स और ओरिएंटल हाइब्रिड्स के लिए 14 to 16 वीक्स, यानी कि ये आपका ज्यादा लंबा चलता है ओरिएंटल लिली, और एशियाटिक लिली कम समय के लिए होती है। यील्ड जो एवरेज यील्ड है 30 to 40 फ्लावर्स स्टेम्स पर स्क्वायर मीटर, डिपेंड्स ऑन स्पीसीज और वेराइटी एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप, तो ये अलग अलग उस पर डिपेंड करेगा। यील्ड जो कम ज्यादा हो सकती है। स्टोरेज ऑफ फ्लावर, स्टोर फ्लावर एट 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। देन हार्वेस्टिंग ऑफ लिलियम बल्ब्स, बल्ब्स कैसे करेंगे, तो जब आपने हार्वेस्टिंग कर लिया तो 45 डेज आफ्टर फ्लावरिंग, हम हार्वेस्ट करने के बाद उसमें इसको बल्ब्स को निकालते हैं। जब फोलिएज उसका जो है येलो कलर की होने लगे, फोलिएज स्टार्ट टर्निंग येलो, येलो कलर स्टार्ट हो जाए उसमें लीफ में, तब उसको हम हार्वेस्ट करके उसको आपको इसमें -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बल्ब्स हैं निकाला, या फिर मोस्ट सैंड जो है सॉइल आपका उसके अंदर भी इसको स्टोर कर सकते हैं। इनिशियली निकाल के जो साइड में आपको ट्रे दिख रही है, ये इसके अंदर हम इसको निकाल के रख देते हैं। सो डस्ट भी इसके लिए यूज करते हैं, तो ये इसके लिए, फिर उसके बाद स्टोरेज में इसको रख देते हैं। फिर डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, लीफ स्कोर्च, बड ब्लास्ट एंड पफी फोलिएज। तो लीफ स्कोर्च में क्या होता है, डेफिशिएंसी किस वजह से, मैग्नीज और की वजह से, और इसको हम लाइन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बड ब्लास्ट है, तो बड ब्लास्ट वो है, वो किसकी वजह से होता है, आपका जो वाटर स्टेगनेशन होता है ऊपर बड पे, उसकी वजह से बड ब्लास्ट होता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन का कंपटीशन, यानी कि न्यूट्रिशन का फ्लक्चुएशन कम या ज्यादा होती है, उसकी वजह से इसमें बड ब्लास्ट होता है। लो लाइट इंटेंसिटी से हाई नाइट्रेट लेवल, यानी कि मैंने बोलता ना फ्लक्चुएशन,
अब नाइट्रोजन कम हो गया, ज्यादा हो गया, उसकी वजह से भी बड ब्लास्ट होता है। पफी फोलिएज इट इज ड्यू टू द फर्स्ट इंजुरी स्टंटिंग ऑफ प्लांट्स। ये मेनली जो आपका ओपन फील्ड में जो एशियाटिक ये ओरिएंटल लिलीज जो है टेम्परेट रीजन में करते हैं, वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट जो है फोर्सिंग इन लीलियम। फोर्सिंग लीलियम मीन्स इसमें हम अपने कोल्ड स्टोरेज ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 6 वीक्स इन केस ऑफ एशियाटिक हाइब्रिड्स एंड 8 वीक्स फॉर ओरिएंटल वंस। मतलब 2 से 4 वीक हम देते हैं 6 वीक के लिए एशियाटिक में और 8 वीक्स के लिए ओरिएंटल में। तो इससे क्या होता है आपका ऑफ सीजन में हम फ्लावरिंग ले सकते हैं इससे, इसलिए फोर्सिंग मीन्स हम फोर्सफुली उसको फ्लावरिंग करवाते हैं प्लांट्स में, इसलिए इसको फोर्सिंग इन लीलियम बोलते हैं। तो ये आपका लिली क्रॉप खत्म।